تیرا نسب حسینی، تیرا نسب حسینی، سادات ہے گھرانہ اے اشرف زمانہ، اے اشرف دشمنی نے اسے اللہ کا دشمن بنا دیا، اللہ کا دشمن بنا دیا۔ اسی طرح نبی کی دشمنی بندے جو کرتے ہیں اپنے جیسا کہہ دیتے ہیں، معاذ اللہ مردہ کہہ دیتے ہیں، معاذ اللہ بے اختیار کہہ دیتے ہیں، معاذ اللہ اپنے جیسا کہہ دیتے ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نبی کے خلاف بکواس کر رہے ہیں۔ نہیں، جب آدم کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہو سکتی ہے تو محبوب کی دشمنی اللہ کی دشمنی کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اس بدبخت کو اپنا دشمن بنا دیتا ہے اور پھر وہ مارا مارا پھرتا رہتا ہے، اور اس کے چہرے پر اب تو یہ باضابطہ ان کے جو خطیب ہیں وہ اپنے بیان میں وظیفہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنا چہرہ کیسے سنوارنا ہے، آپ کے بگڑے ہوئے چہروں کو کیسے رونق بخشنی ہے، تو یہ وظیفہ بتاتے ہیں۔ کیونکہ اب ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ اور جماعتوں کے حساب سے ہمارا چہرہ کافی منحوس نظر آتا ہے۔ ان کو بھی احساس ہو گیا کہ اللہ کا شکر ہے بہت دن کے بعد ہوا ہے۔ اگر یہ غور سے دیکھیں تو ان کی بد مذہبیت اور نبی کی شان میں بکواس اور گستاخی نے اس قدر ان کی روحانیت کو اور ان کے جسم کو، ان کے چہروں کو اس قدر خراب کر دیا ہے، اگر یہ غور کریں تو مرنے سے پہلے ہی توبہ کریں، اگر یہ غور کریں تو مرنے سے پہلے ہی توبہ کریں۔ حضور کی محبت ہی تو چہروں میں نکھار پیدا کرتی ہے، محبت ہی تو کردار میں ایک بہترین اور خوبصورت رونق بخشتی ہے۔ کہا انا ارسلناک شاہدا، ہم نے اپنے محبوب کو شاہد بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر۔ شاہد کا کام یہ رہتا ہے کہ وہ ہر موقع پر، ہر مرحلے پر، مثال کے طور پر کوئی کسی سے معاملہ ہو جائے، کورٹ تک وہ معاملہ جب پہنچتا ہے تو جس معاملے کے تحت بحث رہتی ہے وہ اسی معاملے کے تحت گواہی دیتا ہے۔ یہ گواہی نہیں دیتا کہ یہ پیدا کب ہوئے تھے، یہ سوتے کب ہیں، یہ اٹھتے کب ہیں، نہیں، جس جرم کے تحت، جس الزام کے تحت کٹہرے میں بحث ہوتی ہے جج کے سامنے، اسی حوالے سے اور اسی تعلق سے وہ شاہد، وہ گواہ گواہی دیتا ہے۔ لیکن یہ ہمارا اور آپ کا گواہ ہے، بنایا ہوا ہمارا اور آپ کا گواہ ہے۔ لیکن جب اللہ کہے یہ گواہ ہے اور مولوی کہے نہیں وہ تو بس قیامت میں گواہی دے گا، نہیں وہ تو بس پہلے صحابہ کے دور میں گواہ تھے، اب نہیں، تو ان کا کہنا بھی ہم قبول کرتے ہیں، لیکن جو ہم جواب دینے والے ہیں وہ سہنے کی ان کے اندر طاقت بھی ہونی چاہیے۔ اب گواہی، جب رسول کی گواہی ہے بحیثیت رسول، انا ارسلناک ایک معمولی آدمی کی حیثیت سے اللہ نے ان کو گواہ نہیں بنایا بلکہ رسول کی حیثیت سے گواہ بنایا۔ اور رسول ہمارا ایسا رسول ہے کہ آخری رسول ہے، صحابہ کے دور میں بھی رسول ہے، تابعین کے دور میں بھی رسول ہے، تابعین کے دور میں بھی رسول ہے، زندوں کے لیے بھی رسول، مردوں کے لیے بھی رسول، زمین پر بھی رسول، قبر میں بھی رسول، فرشتوں کے لیے بھی رسول، میدان محشر میں بھی رسول۔ تو کہ کوئی ایسی جگہ اللہ نے بنائی نہیں جہاں پر میرے رسول کی رسالت نہ ہو۔ تو کیا پتا چلا؟ گواہی وہاں جہاں جہاں میرا نبی رسول ہے، اور ہر جگہ میرا نبی جب رسول ہے تو ہر جگہ اس کی گواہی بھی چل سکتی ہے۔ تکبیر، تکبیر، رسالت، رسول، اولاد غوث اعظم، تکبیر، رسالت۔ سنیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اتفاق سے میرے نبی کی گواہی
जिब्राइल को भी है, मेरे रसूल की गवाही की हया इजराइल को भी है, मेरे रसूल की गवाही की हया इसराफील और इजराइल को भी है, मेरे रसूल की गवाही की हया तमाम सहाबा तमाम गैरतमंद मुसलमानों के लिए है। और हद तो ये है कि मेरे रसूल की गवाही की हया खुद अल्लाह तबारक व तआला करता है कि महबूब जिसे जिसे तू चाहे जन्नत में लेकर चला जा, जिसके लिए तू गवाह बनता है उसके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट के तौर पर जन्नतुल फिरदौस और माफी का तोहफा है। तू जिसे चाहे जन्नत में लेकर जा, मैं ये नहीं देखूंगा कि वो है कौन, करता क्या है, किया क्या है, मैं ये नहीं देखूंगा, बस ये देखूंगा कि तू किसे लेकर जा रहा है। मैं सबूत को देखता रहूंगा। फइन्नका बिअयुनिना, मेरी नजर तो तेरे चेहरे पर है, मेरी नजर तो तेरी जुल्फ पे है, मेरी नजर तो तेरे इख्तियार पे है, मेरी नजर तो तेरे तसर्रुफ पे है, मेरी नजर तो तुझ पर है। तुझसे मेरी नजर मैं ये तलाश करूं कि तू जिसे लेकर जा रहा है। एक हदीस पाक, हदीस ये है कि अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएगा महशर वालों से, तुम या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद खड़े हो जाओ। तो जितने मोहम्मद नाम के लोग रहेंगे सब खड़े हो जाएंगे। और मैंने इस हदीस को मुकम्मल बयान किया तो खिताब के बाद एक शख्स बच्चे ने कहा कि इसका मतलब ये है कि जिसका नाम मोहम्मद होगा वो बख्श दिया जाएगा, जिसका नाम मोहम्मद होगा वो बख्श दिया जाएगा, सबका बेड़ा पार हो जाएगा और सारे मुसलमानों के नाम के साथ मोहम्मद लगा हुआ है। मैंने कहा बच्चे जुमा का वक्त था, ज़्यादा तफसील की तरफ मैं नहीं जा सका, तेरे जहन के हिसाब से मैंने उतर कर गुफ्तगू नहीं की, इसलिए तू समझ नहीं पाया। बात यहाँ ये है कि खड़ा होगा वही जो हुजूर को बाइख्तियार समझता है, जो समझता है कि मोहम्मद के नाम पर भी बेड़ा पार होता, वही तो खड़ा होगा। सबको तौफीक नहीं होगी। आप किसी बुजुर्ग के उर्स में गए, किसी बुजुर्ग के उर्स में और ऐलान हो कि जो फला बुजुर्ग का दीवाना है वो खड़ा हो जाए, तो कौन खड़ा होगा? जो दीवाना होगा। और इमाम तो चुपचाप से बैठा रहेगा, वो सोचेगा हम क्यों खड़े हों, हम तो दीवाने हैं ही नहीं, बुजुर्गों के वजह से कुछ मिलता जुलता नहीं, वो क्यों खड़ा होगा? खड़े होंगे महशर में वो जो ये अकीदा रखते होंगे कि मोहम्मद के नाम पर भी बेड़ा पार होता है। बहुत सारों की तकदीरें बदल जाया करती हैं, सारे मोहम्मद नामी गुलाम और दीवाने खड़े हो जाएंगे। अब जब खड़े हो जाएंगे तो एक तरफ हुजूर भी खड़े रहेंगे, हुजूर भी खड़े होंगे। हालांकि अल्लाह ने जो मोहम्मद कहा है वो हुजूर ही को कहा है कि आप खड़े हो जाइए। अब जब सब खड़े हो जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि मैं मोहम्मद से अल्लाह ने खिताब नहीं किया, बल्कि वो जो मोहम्मद है, जो असली मोहम्मद है, उनसे अल्लाह ने खिताब किया है। तो अब सब बैठने लगेंगे तो अल्लाह फरमाएगा नहीं नहीं, तुम बैठो मत, अगर बैठा दूंगा मैं तुम्हें तो नामे मोहम्मद की तौहीन होगी। अब जब खड़े हो गए तो तुम भी जन्नत में चले जाओ। मैं सोचने लगा जब नामे मोहम्मद की उसको इतनी हया, मोहम्मद की इतनी हया होगी, किसी का हाथ और कहे चल जन्नत में, चल जन्नत में, तो अब कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि अल्लाह जिस नाम की हया करता है उसके पकड़ने की कितनी हया रखेगा। अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ ले कोई जमात रोक सकती है? उमर फारूक का हाथ थाम ले कोई मजलिस रोक सकती है? उस्मान गनी का हाथ थाम ले कोई माई का राज रोक सकता है? मौला अली का हाथ थाम ले कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। ऐसी सारी जमातों और सारी मजलिसों में गला फाड़ने वालों, अभी भी बाज आ जाओ, क्योंकि नबी जो हाथ थामेंगे, कभी अबू बकर सिद्दीक का, कभी फारूक आज़म का, कभी उस्मान गनी का, कभी मौला अली का, इन चार से रिश्ता बनाए रखो, बेड़ा पार हो जाए।
शाहिदन, मेरा नबी गवाह है। मेरा नबी, अब ये झगड़ा कब्र में आएंगे कि नहीं आएंगे, कब्र में आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे बेवकूफ, कब्र में भी हुजूर शाहिद है, कब्र में भी हुजूर शाहिद है। अब जहाँ जहाँ उनकी गवाही, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हुजूर की गवाही न हो, हुजूर की गवाही न हो, ऐसी कोई जगह बनी ही नहीं। तो फरमाया मैंने जिस रसूल को भेजा है वो शाहिद है और मुबश्शिर है, खुशखबरी देने वाला है। पहली सिफत क्या है? खुशखबरी देने वाला। डराने वाला बाद में, पहले खुशखबरी देने वाला। और कुछ जमातें निकली हैं जो पहले डराती हैं, पहले अजाब से, अल्लाह के अजाब से डराती हैं। तो ये तबलीग सही नहीं है। तबलीग का शऊर ये है कि पहले डराया ना जाए, पहले खुशखबरी की जाए, मुबारकबाद पेश की जाए। आप जिधर कदम बढ़ा रहे हैं उधर रहमत ही रहमत है, उधर बरकत ही बरकत है, उधर बख्शिश ही बख्शिश है। इधर जिधर आपने कदम बढ़ाया है तो लोग, जमात के लोग डरवा देते हैं बहुत ज्यादा कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, अगर आप रोजा नहीं रखेंगे, अगर 40 दिन में सफर नहीं करेंगे तो सीधे जहन्नम में, सीधे जहन्नम में। ऐसे तबलीग नहीं की जाती। दहिया करदी आए और कहा कि मैं 70 बेटियों का कातिल हूँ। कितनी बेटियों का? 70 बेटियों का कातिल हूँ। क्या मुझ जैसे गुनहगार को भी आपका रब माफ कर सकता है? कहा मेरा रब बड़ा करीम है, बड़ा रहमान है। और फौरन हुजूर ने या अय्युहल मुज़म्मिल, जिस कमली को आपने ज़िबतन किया था उसे उतारा और बिछा दिया। दहिया 70 बेटों का कातिल, और हालत कुफ्र में होने के बावजूद हुजूर अपनी चादर को बिछा देते हैं और कहते हैं बैठ जा, कहते हैं बैठ जा। हमारी महफिलों में अगर कोई मुशरिक आ जाए तो हम दाएं बाएं देखने लगते हैं और भगाने लगते हैं। ऐसा न किया करें। हमारा नबी सरापा रहमत है। उसने जो पैगाम दिया है, जिस तबलीग का अंदाज दिया है, उस तबलीग को अपनाने की जरूरत है। दहिया रोने लगे और इतने रोए, कहा जिसका बंदा ऐसा हो, जिसका नबी ऐसा हो, यकीनन उसका रब बड़ा करम फरमा होगा, बड़ा करम करने वाला होगा। 70 बेटियों का कातिल जो था उसे भी अल्लाह ने माफ कर दिया। और फिर एक निजाम पैदा करता है, वो अपनी माफी के अंदाज का एक दस्तूर बनाता है। दस्तूर क्या? कि दहिया तेरी तौबा कबूल हो गई, अगर तुझे यकीन ना हो तो अब से जिब्राइल तेरी ही सूरत में आएगा, अब से जिब्राइल तेरी ही सूरत में आएगा और दुनिया वालों को बताएगा कि तुझसे बड़ा अगर कोई गुनाह करने वाला नहीं तो मुझसे बड़ा कोई माफ करने वाला नहीं, मुझसे बड़ा कोई माफ करने वाला नहीं। अब हमेशा हजरत जिब्राइल अमीन दहिया कल्बी की सूरत में आने लगे और अल्लाह ने कहा कि महबूब आप खुशखबरी लोगों को दिया करें, बशारतें दिया करें। देखें आप, तबलीग का यही तरीका होता है। आप खुद भी सीखें और अपनों तक ये बातें पहुंचाया भी करें, दावत भेजा करें। कौन सी दावत? वो सिर्फ खाने वाली नहीं, जो अल्लाह रसूल ने पैगाम दिया है उस दावत को भी अपने बच्चों के सीनों में और अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाने की कोशिश किया करें। कहा इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। और आप अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया करें, दावत दिया करें, और इसमें परमिशन खुद अल्लाह की है। हुक्म किसका है? अल्लाह का है। अब आप तवज्जो दें, गौर फरमाएं। मुझे कोई हुक्म देकर भेजे, अब मेरे पीछे जितनी बड़ी ताकत होगी उतनी ही ज्यादा मेरे अंदर दिलेरी होगी, उतनी ही ज्यादा मेरे अंदर दिलेरी होगी। अब हुजूर के अंदर कितनी दिलेरी नहीं होगी कि जिनके पीछे बेइज़्निही का लोगो लगा हुआ है, बेइज़्निही का लोगो, परमिशन है कि ऐ नबी अल्लाह के इज़्न से आप अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएं। यही वजह है कि आपकी राहों में कांटे बिछाए जा रहे हैं, फिर भी दाइयन इलल्लाह, आपके पीठ
पर उजड़ी फेंकी जा रही है, फिर भी दाइयन इलल्लाह, आपके सरे अनवर पर कूड़े करकट फेंके जा रहे हैं, फिर भी दाइयन इलल्लाह, आपको गालियां दी जा रही हैं, फिर भी दाइयन इलल्लाह, आपके चचा और चची की तरफ से जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, फिर भी दाइयन इलल्लाह, अबू जहल की तरफ से नाकाब साजिशें की जा रही है, फिर भी दाइयन इलल्लाह, और कुफ्फार और मुशरिकीन की तरफ से आपके दीन के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, फिर भी दाइयन इलल्लाह, आपके नवासे को कत्ल किया जाएगा, फिर भी दाइयन इलल्लाह, आपके असहाब पर जुल्म किया गया, फिर भी दाइयन इलल्लाह, आपको हिजरत करनी पड़ी, फिर भी दाइयन इलल्लाह, आप मदीने से मक्का आए, फिर भी दाइयन इलल्लाह, अल्लाह के घर को सुथरा किया, दाइयन इलल्लाह, तवाफे काबा किया, दाइयन इलल्लाह। तो मेरा नबी ऐसा दाई है, अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ, दावत देने वाला, कि कोई उसके कदम को हिला नहीं सकता, क्योंकि उसके हाथ में बेइज्निही का ठप्पा लग चुका है, बेइज्निही की इजाजत है, अल्लाह की इजाजत जिसके साथ हो वो दाई है, और जिसकी दावत को कयामत तक मिटाया न जा सके वो मुबश्शिर और नज़ीरा है, और जो मुबश्शिर और नज़ीरा है वो हर हाल में शाहिद है, और जो शाहिद है वो रसूल आज़म है। ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतानी इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ये जो कल्चर है ना पीछे पीछे चलने का, ये इंसानों की फितरत में अल्लाह ने डाल दिया, इंसानों की फितरत में। देखिए, एक है हुक्म की तामील करना, ये फितरत में नहीं है, ये इंसान की फितरत में हुक्म की तामील करना ये फितरत में नहीं है, लेकिन पीछे पीछे चलना ये इंसान की फितरत में, वो किसी न किसी के पीछे चलता ही है, अब माने या न माने। जो लोग कहते हैं कि हम पीछे नहीं चलते, वो भी किसी न किसी के पीछे चलते हैं। जरा ज़हन को करीब करें और आखिरी कलिमात सुनें। और फरिश्तों के अंदर पीछे पीछे चलने की सिफत नहीं है, फरिश्तों के अंदर बस हुक्म की तामील की आदत है, कि अल्लाह का हुक्म है सजदा करना है तो करना, हमेशा रुकू में रहना है तो रहना, कयाम करना है तो करना है, हम तो थकेंगे नहीं, क्यों? अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, हमको बारिश करना है तो करना है, अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि वो पीछे नहीं चलते, वो हुक्म की तामील करते हैं, वो हुक्म की तामील करते हैं। और बंदों की आदत क्या है? बंदा जरूरी नहीं किसी का हुक्म माने, बंदा जरूरी नहीं कि किसी का हुक्म माने, अल्लाह का हुक्म भी नहीं मानने का जज्बा ये रखता है, इतना बड़ा जरी और जुर्अत रखता है ये इंसान कि वो अल्लाह का हुक्म भी नहीं मानेगा, रसूल हुक्म दे तो भी नहीं मानेगा, लेकिन पैरवी ये किसी न किसी की करेगा, माँ बाप की करे, अपने रहनुमा की करे, अपने पेशवा की करे, अपने सियासी लीडर की करे, किसी न किसी की ये पैरवी करता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा जब तू मोमिन है तो ये भी गांठ बांध ले, जब तू मोमिन है तो ये भी उकदा बना ले, जब तू मोमिन है तो ये मजहब बना ले, जब तू मोमिन है तो ये सोच बना ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, कि तुझे शैतान के रास्ते की पैरवी करना ही नहीं है जब तू मोमिन है। अगर मोमिन नहीं तो तू कहीं भी जा, हाँ अगर मोमिन है तो तुझे शैतान के पीछे चलना ही नहीं। हाँ एक बात और से हम नशीन कर ले कि अगर आप किसी की पैरवी से किसी को हटाना चाहें तो आपको उससे बेहतर पैरवी देनी पड़ेगी, उससे बेहतर पैरवी
देनी पड़ेगी। अगर हम कहें कि तू उसके पीछे मत चल, तो वो कहेगा मुझे ये मिलता है, मुझे ये मिलता है, मुझे ये मिलता है, मुझे ये मिलता है। 4 चीजें मिलती हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं कहूंगा तू उसके पीछे चल, तो फिर वो कहेगा इन 4 से बेहतर दिलवाएं, 4 दिलवाएं या 5 दिलवा दें, तभी तो हम उसकी पैरवी छोड़ेंगे और इनके पीछे चलेंगे। तो अल्लाह ने मिजाज के हिसाब से अपना दीन उतारा कि ये पैरवी करेंगे, मानेंगे नहीं। शैतान की पैरवी तुम मत करो, दूसरे कर रहे हैं करने दो, क्योंकि तुम मोमिन हो। तुम मोमिन हो, तुम्हें जेब नहीं देता, तुम्हें सूट नहीं करता कि तुम शैतान के पीछे चलो, क्योंकि वो तो तुम्हारा दुश्मन है। परवरदिगार फिर हम किसके पीछे चले? उससे बेहतर दे, उससे बेहतर दे कि हम उसके पीछे चले। तो उसने कहा कि फिर तू कुरान का वरक उलट, तो तुझे पता चलेगा कि उससे बेहतर भी एक पैरवी मौजूद है। तो क्या है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कि अगर तू मेरी मोहब्बत चाहता है तो मेरे महबूब के पीछे चल। मेरी मोहब्बत के लिए मेरे महबूब के पीछे चलना होगा। याद रखो, ईमान वाले के लिए दौलत की मोहब्बत, शोहरत की मोहब्बत, ख्वाहिशें दुनिया से उनसियत और तमाम मालो मनाल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, फैमिली की मोहब्बत, इन तमाम मोहब्बतों से बढ़कर हुजूर की मोहब्बत, और हुजूर की मोहब्बत से हमें अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है। तो अल्लाह ने कहा मेरी मोहब्बत के लिए तुम्हें उनके पीछे चलना होगा। तुम मोमिन अपने को बनाए रखना चाहते हो तो मेरे महबूब के पीछे चलना शुरू कर दो, उनके पीछे पीछे चलते रहोगे, मेरी मोहब्बत का मजा चखते रहोगे, उनके पीछे पीछे चलते रहोगे, मेरी मोहब्बत का मजा तुम्हें मिलता रहेगा। फिर चेहरा भी नहीं बिगड़ेगा, दिल भी खराब नहीं होगा, रूहानियत भी में कमजोरी नहीं आएगी, रूहानियत में हलावत रहेगी, ताजगी रहेगी, चेहरे से हशाश बशाश रहोगे, रौनक रहेगी, यहाँ भी रहेगी। कब्र में जाओगे, लोग चिराग जलाएं ना जलाएं, मिट्टी डालकर अपने घर चले जाएं, उनकी मर्जी है। लेकिन याद रख, अगर तूने दुनिया में मेरे महबूब के पीछे पीछे चलकर जिंदगी गुजारी है, लाख लोग तख्ते बिछा दे, लाख लोग मिट्टियां डाल दे, लाख लोग पैक कर दे, लेकिन उस अंधेरी कोठरी में भी फत्तबिऊनी या इत्तिबाए रसूल का चिराग रोशन मैं कर दूंगा। इत्तिबाए रसूल का चिराग मैं जला दूंगा। अगर कब्र में लाइट चाहिए, कब्र में रोशनी चाहिए, कब्र में ताबनाकी चाहिए, कब्र में मुनव्वर करना चाहते हो अपने उस लेहद को, तो एक ही चिराग, एक ही लाइट, एक ही रोशनी दरकार है, और वो चिराग मुस्तफा जाने रहमत की इत्तिबा से मिलता है। अल्लाह से मुहतरम, तो आप जितना जानते हैं अपने लोगों तक पैगाम पहुंचाएं। जो बिगड़ रहे हैं, बिगड़े हुए लोगों से पहले आप उन्हें रास्ते पर ले आए, कोशिश किया करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुन्नत नबवी पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उनसे बेपनाह टूट कर मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर की सच्ची अकीदत व मोहब्बत और उनका इश्क हमारे सीनों में मौला तू रोशन फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।